can have a look. So I'll be dividing this session into three categories of people. तीन अलग अलग तरीके के लोग हैं जिसमें I'll be dividing you all. So the first category of people is the ones who have already studied till now. Already studied till now. That means now their revision period is going on. One category of people is that they have their fundamentals clear, but they haven't studied everything as of now for the major and minor subjects. Fundamentals clear hai bhai. ठीक है. And the other category of people are those that are basically starting now. Okay, bhai, we have 4 months left for GPAT and we want to start now. 5 months left for GPAT and we want to start now. ठीक है. So based on these three categories you can localize yourself. So when I talk about this book, Piyush, it is for those people who are starting now. You, because it's given in detail, you can have a look at this book. For those people who have already studied, a good book for you is Inamdar. Solving MCQs from Inamdar is going to make it a picture perfect for you. And for those people जिनके fundamentals clear है but they are still skeptical के GPAT दे ना दे, ठीक है. And एक चीज that I want to tell everybody attending this session out here, that irrespective you are doing whatever thing, आपको आगे MBA करना है, MS करना है, you do want to do any, pursue anything, but once in your CV you have a qualification of a national level examination like a GPAT, that would create a lot of value, right? बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. Why would they select you? आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए. You should have that specific peculiarity over others. So ये कैसे आएगी? If you crack any examination, not GPAT. In fact, I mentioned a lot of examinations. I'm going to mention ahead. Any of these examinations, it's going to be a icing on the cake for you. Okay. So yeah, those who want to have their fundamentals clear, they must go through the Pearson. इस book में काफी अच्छे से they have mentioned about first they, chapter wise. जैसे physical pharmacy we are studying rheology, so there are 2-3 pages on rheology, or subjective and then objective questions. So chapter wise MCQs. That is what you want to have to do right now, right? Yeah, on YouTube I can see people are saying Inamdar is a good book, Pearson. Yeah, all of these books are good that I've written on the screen, but I would suggest that if you're belonging to this particular category, तो उस हिसाब से आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, right? Next, for the pharmacy competitive examinations, you have different exams. Matlab, people only know about GPAT, pharmacy students, and they are just restricted to GPAT. It's not like that. Even if you are into pharmacy, you can give BITS Pilani, you can give ICT MTech, which is a tech, industry-oriented exam, technical. Tech stands for technical. Then you have CUET PG Common University Entrance Test. So if you want to get into central universities like Jawaharlal Nehru, you have a lot of Punjab University, Chandigarh University, a lot of technical central universities are there. So if you want to get into these these universities, this is the best thing that you can go for. Then you have GATE Excel, one of the common examinations. So GATE सोचते हैं कि ये तो engineer के लिए है. No, there is something called as GATE Excel Life Sciences. That's a domain. Life science is our domain because it consists of microbiology, biochemistry, and biotechnology. ठीक है? Microbiology, biochemistry, biotechnology, and of course pharmacology, and of course pharmacology. Okay, so these are the 4 things that you have to study for GATE majorly, and chemistry. 5, sorry for the delay. 5, right? So these are the things that you have to study for basically GATE Excel Life Sciences. So those are preparing. GATB is for biotechnology. IIT BHU is also very good. IIT is itself a very good institute. Manipal, if you are good with your pockets, you can go for Manipal. Of course, the fees are a bit high, but yes, the education is really good at Manipal. Okay, so these are the rest of the examinations for MBA and GRE, TOEFL, IELTS are for the abroad if you're planning abroad, or something like that. But currently, what I plan to tell you all is how important it is to study for GPAT and what are the different strategies that you will adopt for cracking this GPAT. So this is the basically the slide that is showing you all about what are the things that will be covered during the sessions, right? So this I'm going to display this slide. Just wait for a minute.
Yeah, I hope आप लोग हैं and everybody is understanding, right? I hope everybody is understanding clearly. I hope everybody is understanding clearly. Okay. Yeah. Now is my screen visible to all of you on YouTube as well as in this thing on the Google Meet? Is the screen visible to all of you? Can you see strategy for GPAT? Yes, visible है. Okay. 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 Just a minute. The people on YouTube can't see it. Just a minute. Okay. Okay, now they can see that, right? So when I talk about what are the things that will be covered for during the sessions, so we'll be covering all the important pharmacological things that you need to do, all the medicam class that are frequently asked for the pharmacognosy, then all analysis related like instrumental method of analysis, IME, titrations that you study right back in your first year, right? So these are the points that we are going to be discussing, and also we will be launching a course. We'll give them more information about that during after some time. So in that course, all of these points we'll try to cover so that we can have a lot of maximum insights for GPAT, right? So whenever you study for any competitive examination, एक चीज that is very necessary is you must know the strategy to study, right? So if you are studying suppose pharmaceutics, so ये जो है ये pharmaceutics का मैं आपको बता रहा हूँ example. So if you are studying for pharmaceutics, so make sure that आपको पता हो कि आप पढ़ कैसे रहे हो, काफी ज्यादा जरूरी है. मतलब you should know the difference between tablets, capsule, parenterals, because जब पता है आपको कि ये आता है एग्जाम में, so it is very important कि आप ये पढ़ो अच्छे से, right? So whenever you're studying all of these topics of pharmaceutics, make sure that you know about the evaluation tests, methods, excipients, equipments. So आप हमेशा एक पेज में revision, like whenever you're doing it, make it a revision flow so that at the end जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? Okay, on YouTube they are telling the slides are not moving. Just a minute. अब मूव होगी, ठीक है, चलो ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you know the difference between अगर टैबलेट से क्वेश्चन है, so you know that hardness, dissolution, disintegration पे क्वेश्चन आते हैं. So either there will be questions on you can say dissolution apparatus type 1 to type 7, or they can be कि uncoated tablets कितने टाइम में dissolve होती है, 15 minutes, right? Or they can have asked what is the mesh size in dissolution apparatus, or what is the temperature 37 plus third year, and how many people are in the final year. Can you just drop that down in the comment section for me? Can I just drop that down in the comment section for me so that I can get an idea that how many people are belonging to the. Please drop it down in the comment section for me. Okay. Uh-huh. Third year B Farm, final year B Farm, final. Okay, so mostly we have people from third year and final year B Farm. Works. ठीक है. So it's very important that आपको एक आइडिया हो जाए उस चीज का, काफी ज्यादा जरूरी. आपके पास अगर थर्ड ईयर में तो टाइम है, यू कैन जस्ट मेक योर, इतना भी बोले हमारे नोट्स बेस्ट है ये वो, मेक श्योर तुम अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ. मेक श्योर यू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है? चलो, सो ये दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फार्मास्यूटिक्स, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी. ओके, ये सब क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, so make sure that you have that idea. Then if I talk about the pharmaceutical chemistry point of view, तो अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, this is part. So mostly इन तीन डोमेन से ही क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में. So if you know when specifically organic chemistry, तो नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना दो पूरी की पूरी. Make sure you have your list in hand कि इससे ये पूछते हैं, इससे ये चीजें पूछते हैं, so that you don't leave yourself blank. You don't leave कि भाई हमें पता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना, एंड मोमेंट पे वैसा सीन ना हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट ऑल ऑफ.
Actually, it's dual live, so it's really problematic. It's getting. Um, yeah. I hope my screen is visible back again to all of you. So ये सारी बहुत बार आती है एग्जाम में, ठीक है. So you must be aware about all of this. अभी द मेजर थिंग दैट एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग जीपैट, ये सबको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दरवाजा खुल जाता है एम फार्म के लिए. यू नो, इफ यू इवन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर एम फार्म, बट स्टिल कंपनीज को अगर आप ये बताते हो दैट यू हैव क्वालिफाइड दीज लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स रियली गुड फॉर यू. इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक. सो काफी बार ये आपको हेल्प कर जाता है कि अगर आपने क्वालिफाई किया इतनी बड़ी एग्जाम, स्टाइपेंड एंड ऑल, दिस इज ऑल कॉमन टू यू. मेन यहाँ है, लोगों को यही नहीं पता होता कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी मस्ट अटेम्प्ट टू गेट अ गुड रैंक टू क्वालिफाई. अभी क्वालिफाई करना है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द ईयर कि उस साल लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा. बट ऑफ कोर्स उसके अलावा अरे एक सेकेंड, आई थिंक सो द रॉन्ग पीपीटी इज बीइंग शेयर्ड टू योर. So now it's shared correctly. So sorry. Yeah. ठीक है. So mostly there are questions which are asked from this part of domain only. 125. अब हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं टू क्वालिफाई? फॉर क्वालिफाइंग 60 राइट क्वेश्चंस आपको राहत की सांस दिलाएगा कि हाँ भाई 60 क्वेश्चंस आर राइट, वी हैव गुड चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग. बट इफ यू वांट टू गेट अ रैंक बिटवीन 1 to 100, 100 to 1000 एंड ग्रेटर देन 1000, ठीक है, 100 to 1000 में चाहिए तो 90 राइट क्वेश्चंस अगर आपके आ गए, या इवन 85, सिट बैक आराम से, यू आर एट अ गुड प्लेस माय फ्रेंड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 100 to 1000 जिनको ये रैंक चाहिए, 75 to 80 क्वेश्चंस आ गए, आराम से रैंक आ जाएगी. एंड 1000 के बिलो 65 क्वेश्चंस भी लिख लिए तो 1000 के आसपास रैंक आ ही जाएगी, ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली दिस आर द नंबर्स दैट यू मस्ट अटेम्प्ट. अब ये तो राइट क्वेश्चंस है, इतने राइट आने चाहिए. अब 125 में से हाउ मच यू कैन शुड अटेम्प्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. वन हु फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक जो एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, एंड एक जो फोकस करते हैं कि ठीक है बस हम अटेम्प्ट कर देते हैं, ये वो वैसे टाइप का सीन. सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी तो 100 क्वेश्चंस इज ओके, बिकॉज आई माई सेल्फ, मैं अपनी बात करूँ तो आई हैड अटेम्प्टेड 102 क्वेश्चंस. 102 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मैंने शायद. यस. सो इट्स अपॉन यू दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट, ठीक है. इट्स टोटली योर चॉइस. So I would suggest कि around 100 to 105 questions will be a good place कि अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो under 100, under 50, ठीक है, that those kind of ranks. And major cheese, what you have to do, focusing upon the major subjects. It's very important that you focus on the major subjects because ये major subjects ही आपकी नैया पार कराएंगे. That is pharmaceutical analysis, pharmacology, pharmacognosy. Is the screen moving? Is the screen moving? सबको स्क्रीन मूव करता हुआ दिख रहा है या नहीं? Yes. Is the screen moving for you or no? Okay. Yes, please keep confirming to me. Okay. So ये major subjects पे pharmaceutical analysis. So mostly from this pharmaceutical analysis part, what questions we get titrations पे, we get errors पे, and significant figures पे, ठीक है. Significant figures, titration and errors. Then when I talk about IMA, instrumental method of analysis, इसी का छोटा भाई, over there you get questions upon those topics: spectroscopy, chromatography.
Just a moment. Was it breaking during the entire thing? Just a minute. Yes, am I audible to you all? Yeah, am I audible to all of you? Yes. Okay. I think so. We are good to go. I think so. We are good to go. So mostly you have to focus upon all of these subjects. काफी बार ये सब्जेक्ट्स पे पूछते हैं वो क्वेश्चन. अब मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो फार्माकोलॉजी में क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेरे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे आएंगे या दे विल बी ऑन एंटीडोट्स के this antidote को you have to give this drug and which will be the antidote जैसे paracetamol. So what is the antidote for paracetamol? Can somebody tell me the antidote for paracetamol? Yes, can somebody help me out with the antidote for paracetamol? N-acetylcysteine, right? And then even on the YouTube you can just type those people, right? I'm hearing you all. So it is very important कि आपको ये सारी चीजें पता हो. Adverse drug reaction, gray baby syndrome किससे होता है? Can somebody tell me gray baby syndrome? Gray baby syndrome. Gray baby syndrome किससे होता है? Chloramphenicol, right? So these are very common things that you should be aware of, and काफी बार ये पूछते हैं. So make sure that you go through this अच्छे से. Okay? Yes? Understood? Understood everybody? Sure. Moving ahead, most of the things from chemistry part, okay? Cognosy we'll discuss at the end because it has a lot of things. Most of the things from chemistry part, most of the things that comes in the chemistry is all your SAR based. एंड SAR अगर आप पढ़ते हो यू मस्ट नो कि आपको SAR के अच्छे पॉइंट्स पढ़ने या बुरे पॉइंट्स बिकॉज SAR आर ऑफ there are so many good points that adding an electron donating group at this and this position will give you this effect and all. So आपको वो चीज पता होनी चाहिए that you have to read the good part और bad part. कोई एक ही पार्ट पढ़ो काफी. जैसे 6th पोजीशन पे फ्लोरोक्विनोलोन में फ्लोरीन ग्रुप लगाया तो एक्टिविटी बढ़ेगी. एनी वन पार्ट. डोंट गो टू स्टडी एंटायर SAR. पूरा SAR पढ़ने जाओगे तो हो गया काम फिर. So make sure that you study the one part of SAR very well. ठीक है, that is suffice. And mostly वही part से आते हैं question. ठीक है. So and focus more upon the structures, especially the drugs in which there are two rings. Yes, can somebody tell me imidazole ring कौन से drugs में है? Can somebody tell me examples of drugs which have imidazole ring in them? Yes, on YouTube as well as on this thing, Google Meet. Yes, I have an eye on chat box of both the places. जल्दी से बता दो कौन से drugs में we have imidazole ring. Yes, can you tell me? Can you tell me which drugs there is imidazole rings present? Okay, okay, okay. यहाँ की audience ठंडी है. Yes, the Meet audience is very cold. On YouTube, I'm getting so many different drugs
Yes, वहाँ पे मुझे मिले हैं cimetidine. In cimetidine we have imidazole. There I have got azoles, methimazole. Azole मतलब nazole and all, वो वाले azoles. Clotrimazole, okay, somebody शीतल विश्वकर्मा लिखते हैं. Writes metronidazole. Very good. Metronidazole has a imidazole ring. एंड बेंजीमिडाजोल रिंग भी है मेबेंडाजोल में. देखो एक रिंग मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, कितनी सारी रिंग्स आ गई. सोच सकते हो एक स्ट्रक्चर बनाने पे इतनी सारी रिंग्स आ गई है. सो सोचो कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास. वी हैव सो मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सो इट्स जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिंग. जस्ट रिंग पता करो. डोंट स्टडी द एंटायर स्ट्रक्चर. इट इज वेरी टीडियस. इट इज वेरी टीडियस पूरा स्ट्रक्चर पढ़ सको. बट कोई भी एक चीज पढ़ लो, है ना. रिंग देख लो कोई भी ड्रग की. डायूरेटिक्स, ओके. कौन सा डायूरेटिक्स, कौन से डायूरेटिक. इमिडाजोल रिंग है. यस, कैन यू हेल्प मी आउट विद एनी डायूरेटिक हैविंग इमिडाजोल रिंग. वेरी गुड. टीनिडाजोल. नाफाजोलिन. नाफाजोलिन हैज नाफ्थेलिन रिंग. यस, एंड सो दिस इज हाउ यू मस्ट नो. ठीक है. सूटिक्स से तो स्टडी द फिजिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी सो वेल दैट तुम कोई भी पार्ट मिस ही ना करो. इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी. अब रियोलॉजी, माइक्रोमेनेटिक्स से इफ आई थ्रो एनी क्वेश्चन ऑन यू, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट वेरी वेल. रियोलॉजी में न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स से, माइक्रोमेनेटिक्स में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स. इवन इफ आई वेक यू अप एट द नाइट एट 1 o'clock, आपको याद आना चाहिए. इतनी अच्छी से यू शुड स्टडी देम बिकॉज यू नो दैट हर बार क्वेश्चन वहां से आता है एंड आएगा. फ्रॉम टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल, एरोजोल्स 3 क्वेश्चन आते हैं. वी नो दैट देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू अपीयर फ्रॉम दीस 4 एंड फ्रॉम पैरेंटल्स. पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है. पहले से पता है ये क्वेश्चन आने वाले हैं, देन व्हाई नॉट टू स्टडी देम. करेक्ट. सो ये क्वेश्चंस आते हैं. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली द पॉइंट्स दैट आई मेंशन, हाइब्रिडाइजेशन, SM1 SM2 एंड ऑल, उसी से क्वेश्चन आते हैं. तो कैन यू टेल मी अ नेम रिएक्शन. कैन एवरीबडी वाचिंग द यूट्यूब वीडियो एज वेल एज ऑन द गूगल मीट, कैन यू टेल मी व्हिच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. कौन से नेम रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है. एंड फॉर यू आई विल गिव यू ऑल ऑप्शंस एज वेल. वी हैव Kolbe's reaction, we have Riemann-Tiemann, we have Grignard reagent, and we have Schotten-Baumann reaction. Yes, कौन से name reaction में there is formation of salicylic acid. Yes, everybody, can you help me out? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको. मुझे चैट्स क्यों नहीं दिख रहे फिर. Yes, everybody is sleeping. सबको नींद आ गई है क्या. Yes, very good Payal and Sheetal. Very good Jatin. Kolbe's reaction. शाबाश. ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया. अभिषेक मुड़े, सफान ऑन यूट्यूब, वेरी गुड. ठीक है. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. काफी ज्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न. ठीक, आगे बढ़ेंगे. चलो, रीमर-टाइमैन. किसी ने रीमर-टाइमैन लिखा है. यस, सैलिसल्डिहाइड बनता है क्या रीमर-टाइमैन में. डू वी गेट सैलिसल्डिहाइड इन रीमर-टाइमैन. कंफ्यूज हो गए. यही कंफ्यूजन क्रिएट डिफिकल्टी कर रहा था. अभी गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू द स्टैंडर्ड बुक्स. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेरी बिग प्रॉब्लम. के आज के टाइम पे पीवी, निराली, ठाकुर, अग्रवाल, इन्होंने इतना पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है. दैट इज गुड इफ यू वांट टू स्टडी फॉर सेमेस्टर, या फिर जस्ट ऐसे आंसर भरने के लिए लिखना होता है ना. आई एम सॉरी टू बी फॉर बीइंग रूड, बट दोज बुक्स आर ओनली फॉर दैट. इफ यू वांट टू स्टडी हार्डकोर, अगर उठाओ फार्मेसी की, सुब्रमण्यम उठाओ फिजिकल फार्मेसी की, मार्टिन, स्टडी फ्रॉम दीज बुक्स यार. ठीक. देन देयर इज अनदर बुक कॉल्ड KD Tripathi, Lipin Code for pharmacology. For chemistry you have Wilson and Griswold, Medicam, Wilson and effect, mesomeric effect, ये सब चीजें. These are for chemistry. For cognosy, Kokate, CK Kokate. ये बुक्स नहीं पढ़ो आपका नुकसान है. GPAT में ट्रस्ट मी 60 लोग ये लाइव देख रहे हैं. आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड. देयर आर 60%
60% ऑफ क्वेश्चंस जो सीधे सीधे स्टैंडर्ड बुक्स के स्टेटमेंट्स है, जैसे एक स्टेटमेंट आया था ब्लूम स्ट्रेंथ पे. यस, कैन यू टेल मी ब्लूम स्ट्रेंथ कौन से डोसेज फॉर्म से रिलेटेड है? ऑल ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन दिस थिंग. कैन यू टेल मी ब्लूम स्ट्रेंथ कौन से इससे है, कौन से डोसेज फॉर्म से रिलेटेड है? वेरी गुड. कैप्सूल्स, अरूप, जतिन, पायल. यस एवरीबडी, यूट्यूब पे भी काफी लोगों ने लिखा है. सो अगर क्वेश्चन ये आया था कि हायर द ब्लूम स्ट्रेंथ, हायर द डैश इज द मॉलिक्यूलर वेट, और ऑप्शन थे हायर, लोअर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. अब एक तो बहुत कॉमन सेंस है कि बोथ ए एंड बी तो हो गए नहीं, नन भी नहीं हो सकता, तो आइदर आंसर हैज टू बी हायर और लोअर. जितनी ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? बिकॉज Bloom strength depends upon the molecular weight of the gelatin, right? Cross-linking ability, cohesive strength of gelatin, correct? So these are different direct questions है, line to line. ये line आपकी मौजूद है बुक में, मैं नहीं बोल रहा. This is present in your book. So 60% of the questions are direct from the book. Trust me. ये तो बस मोटिवेशंस की बात है कि परसिवियरेंस होना चाहिए, मतलब एक करने की चाह के इफ यू आर प्लेइंग पबजी तो वो होता है ना कि हम डायमंड खेले, जो भी व्हाटएवर यू हैव दैट इन गेम कि वी विन दिस, वो होता है ना कि एंड तक जाए. तो परसिवियरेंस रखो कि हाँ यू देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर विल बी कि मार्क्स ही नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा, वी आर रिवाइजिंग बट याद नहीं रह पा रहे कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज वी ऑल हैव बीन फ्रॉम द सेम लेवल थिंग, राइट? मैं भी उसी से आया हूँ. सो वो होता है कि हाँ फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर द पार्टी, फ्रेंड्स क्लब में जा रहे हैं. हायर द ब्लूम स्ट्रेंथ, हायर द मॉलिक्यूलर एंड लोअर विस्कोसिटी. यस डियर. तो वो होता है ना कि फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, हम नहीं घूम पा रहे. ये बहुत कॉमन चीज है जो देखने मिलती है, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. इससे बाहर आ जाओ, काफी ज्यादा जरूरी है. एक साल बाद आप खुद बोलोगे कि मेरा डिसीजन राइट था. एंड डू नॉट हिट ओवर क्वेश्चंस. ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को ना पीपल से जस्ट मार्क मार्क 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब करना है कुछ भी नहीं नहीं नहीं. 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट आइदर वाया एलिमिनेशन मेथड और वाया सम लॉजिक. ऐसे 100 क्वेश्चन सर ने बोल दिया तो वी हैव टू गिव ना 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 ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. 60 करो चलेगा, लेकिन इफ यू आर श्योर कि वो 60 में से 55 आर राइट, यू आर एट अ सेफ प्लेस. लेकिन ऐसे नहीं कि 100 में से 50 राइट है, 50 रॉन्ग है, नेगेटिव में अगेन द सेम मार्क्स कम हो गए. ये नहीं करना है. दिस इज अ वेरी बिग, आप अपना आपको खड्डे में डाल दोगे. ठीक है. यस अभिषेक, तेजस्विनी, समीक्षा, Divya, everybody on Adiraj on YouTube, Elon, Sakshi, and everybody out here in the meet. I hope I'm clear to all of you. Yes, कळलं, समजलं सगळ्यांना? सबको समझ आ रहा है? बधाने समझ आवे छे? चलो चलो, let's move ahead. So next thing that I'm telling you, I'm going to tell you all is follow the 21 days rule. अब ये 21 days rule क्या है? कोई भी चीज को अपनी आदत लगने में ना 21 दिन लगते हैं. If you follow or any do anything, if you watch any show और anything, जैसे कौन सा है वो जो चल रहा है बिग बॉस, इफ यू वॉच दैट पर्टिकुलर शो फॉर 21 डेज आपकी वो आदत बन जाएगा. इफ यू डू एनीथिंग फॉर 21 डेज इट विल बिकम योर हैबिट. सो 21 डेज मेक श्योर आप जल्दी उठो. यू इफ योर कॉलेज इज एट 9, वेक अप एट 6:30 to 7:30, स्टडी फॉर 1 hour फॉर 21 डेज. आपकी अगले दिन 22nd डे पे ट्रस्ट मी आपकी आंख खुलेगी एंड यू विल टेल दैट हाँ इट हैज बिकम माय हैबिट टू रीड एवरीथिंग 1 hour. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये लोगों की that they tell कि we don't get time to study, we didn't have time for reading. हम थक जाते हैं. क्यों थकते हो? Make it your habit, make it something आपका गोल. के क्यों थकोगे भाई? कुछ नहीं थकोगे. Even if you are traveling from Bandra to Palghar, Bandra to Kalyan, Andheri to anywhere, विले पार्ले यहाँ वहाँ, ट्रैवलिंग करते करते पढ़ो. When you are in the bus, MCQ सॉल्व करो टेलीग्राम पे. When you are in the train, लटक रहे हो, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ तो खाली है ना, वन हाथ से म्यूजिक सुन रहे हो. इंस्टेड ऑफ दैट लिसन टू एनी लाइव लेक्चर जिसमें मॉक टेस्ट सॉल्व हो रहे हैं. यार इट्स जस्ट परसेप्शन. अगर आपने परसेप्शन बदल दिया थिंग्स विल फाइन. एंड आई नो काफी लोग हंस भी रहे होगे, रिलेट भी कर पा रहे होगे ये चीजों से, होपफुली, राइट? चलो, शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? यस, सबको मजा आ रहा है. आई होप एवरीबॉडी इज चार्ज्ड अप विद मी एंड नॉट फीलिंग टायर्ड. चलिए चलिए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. चलो. नेक्स्ट, यू मस्ट नो द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट. काफी ज्यादा जरूरी है जो मैंने आपको बोला. यू शुड अटेम्प्ट और डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, आपका गोल कितना है. एंड दीज वर द यू नो रफ एस्टिमेट्स दैट वर गिवन कि ये 2010 से 2019 तक का ये मैट्रिक्स है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम विच सब्जेक्ट. सो हमें पता है, वी आर ऑलरेडी इन एडवांस, वी नो द फैक्ट
दैट इन फार्माकोलॉजी 20 क्वेश्चंस के ऊपर आने हैं, 20 क्वेश्चंस मिनिमम आ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री से 20 आ रहे हैं, केमिस्ट्री सूटिक्सकोलॉजी 60 क्वेश्चंस तो जेब में है, क्यों देने हैं? व्हाई यू वांट टू गिव? डोनेट करके क्यों आने मार्क्स? यस, ये क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाओ। माइनर के माने माइक्रो, बायोकेम, बायोटेक वगैरह ठीक ठाक है, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस 2 और 3, उसके लिए बहुत पूरा पढ़ना पड़ता है, मत पढ़ो। study important subjects. So during our course that we are going to launch, उसमें we are going to focus on those topics only जो आपको पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है? And those who will be enrolling today, उनके लिए that is course is only for 1,000 rupees. So that is one added advantage. So at the end we'll discuss about the course as well. But main objective तो वो है ही नहीं, वो तो ठीक है, secondary है. Main आपको पढ़ाना है, आप कहीं से भी पढ़ो, from whichever institute, from whichever this thing industry, whichever college. Main thing you must know is the course, ठीक है? You that you have to study for a GPAT, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हाउ डू यू सॉल्व द पेपर? पेपर का दिन आ गया, आप पेपर देने चले गए, ठीक है? यस, आता अभी आपको लग रहा है कि अरे हाउ डू आई सॉल्व? ऑलवेज सॉल्व द पेपर इन 3 राउंड्स। यू नो व्हाई? ह्यूमन साइकोलॉजी सेज, by the way I am a diploma in psychologist as well, so I can comment on that, कि अगर आप कोई चीज फर्स्ट टाइम में करते हो ना, गट फीलिंग, दैट इज सपोज टू बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80%, ठीक है? एंड अगर आप कोई चीज घाई में या एंजाइटी में कर रहे हो, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एग्जाम, ट्रस्ट मी, एग्जाम के टाइम पे आपकी हालत बहुत खराब होगी। ये मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया ना, आई वुड थिंक स्टिल ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन कि मैंने वो राइट किया था या नहीं, मैंने वो सही मार्क किया या नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो माइंडसेट ना बोझ बन बन के आपके अगले अगले क्वेश्चन में आपको अफेक्ट करेगा। तो ऑलवेज इन द फर्स्ट राउंड ना बिल्कुल चेंज मत करना ऑप्शन। फर्स्ट राउंड में जो सही लगे वो मार्क कर दो, जस्ट मार्क एंड प्रीव्यू फॉर नेक्स्ट करके देयर इज वन ऑप्शन इन जीपैड इंटरफेस, यू कैन गो फॉर दैट, प्रीव्यू लेटर ऐसा कुछ आता है, सो यू कैन गो फॉर दैट एंड जस्ट मूव अहेड, आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है? एंड देन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल for you कि राउंड 1 में आपने एटलीस्ट थोड़े थोड़े, एंड trust me, the number of questions that I expect you to attempt in round 1 are around 50, इतने क्वेश्चंस राउंड 1 में करो। राउंड 2 में when you're going 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कर दो जिसमें आपको डाउट है दो ऑप्शंस में, एंड इन द थर्ड राउंड 2 to 5, not more than that। और चेंज तो बिल्कुल नहीं करना है राउंड 2 में। वंस यू कैन चेंज, इफ यू आर कंफ्यूज, याद आ जाए कि अरे हाँ नहीं भाई, टैबलेट में फ्राइबिलिटी 1% से कम हो तो नहीं एक्सेप्टेबल है, तो चेंज करो, राइट? अब मैंने फ्राइबिलिटी का जिक्र किया है, सो टू कीप द ऑडियंस अलाइव, कैन समबडी टेल मी द फ्राइबिलिटर का नेम एंड कितने आरपीएम पे कितने मिनट के लिए रखते हैं? कितने टाइम के लिए फ्राइबिलिटी के लिए रखते हैं फ्राइबिलेटर में, एंड वो फ्राइबिलेटर का नाम एंड द मिनट्स आरपीएम एंड द नेम ऑफ द फ्राइबिलेटर। यस, एवरीबडी इन द मीट, मुझे लग रहा है नाम लेने पड़ेंगे सबके, तो सब जगेंगे, बाकी सब सोए हैं। ओके, इज इट दैट आई हैव टू टेक द नेम्स? चलो भैया नाम लेंगे अब तो हम, फिर आ जाइए, कहाँ है मीट में? चलो, कोई छोड़ मत देना नीट नाम लेने के उससे कि भाई हमारा नाम ले लिया, नीट छोड़ देंगे, हाँ? या पहले ही? चलो, यस, संकेत, कल्याणी, यचिका, आरती, आकांक्षा, अरूप, अनीशा, अश्लेषा, यस, आवी देर, ध्रुति, दिशा, दिव्या, गौरव, गौरी, हबीब, यस, आवी देर, समझ आवे छे, समझ आ रहा है, कल्ला सगलाना, कनिका, खतीजा, ओके खतीजा, गुड टू सी यू, कोमल, मरियम, मोहिनी, ओमकार, यस, पायल, प्राजक्ता, रतिन, रवीना, रॉयल, सोतोनी रहना, संध्या, शीतल, शुभम, एक्चुअली 4 शुभम है, उषाश्री, सृष्टि, सोहम, यस, वर्षा, आई होप वी आर देयर, दैट इज करेक्ट और नॉट, वी आर नॉट श्योर, यही तो है। फियर को ओवरकम करो, आप एग्जाम में भी श्योर नहीं रहोगे कि हाँ ये राइट है या नहीं, एंड वो श्योरिटी से इवन इफ वो राइट होगा आप मार्क नहीं करके आओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं श्योर नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि ये क्वेश्चन राइट है या नहीं, घर आके मैंने देखा तो वो क्वेश्चन का आंसर राइट ही था, डायनाजोल था उसका आंसर, मैंने भी डायनाजोल मार्क करके अनमार्क किया था। सोचो, दुख सोचो तुम, जो मुझे दुख चढ़ा होगा, मार्क करके अनमार्क करना, मैंने तो मार्क राइट करा था, फिर मैंने अनमार्क कर दिया। तो ये सब तो सोचना ही नहीं है, भूल जाओ कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है? चलो, समझ आएगा सबको? चलो चलो, बहुत बढ़िया। रोज फ्राइबिलेटर 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स, मुझे आंसर तो मिल गए मेरे, बढ़िया।
अब अगर मैं आगे बोलूँ तो टाइप्स ऑफ पेपर एंड ऑप्शंस, ऑफ कोर्स ये इंटरफेस है जो आपको दिखता है, ये इंटरफेस है दैट यू कैन सी ड्यूरिंग द पेपर. अब ये बदल गया है, दिस इज न्यू, नॉट द न्यू वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट सिमिलर ही होता है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. अब तो टाइम बाउंड है सब, यू नो द पैटर्न हैज दैट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, उसमें तो सब टाइम बाउंड है, देयर आर 5 सेक्शंस एंड ऑल, बट दिस टाइम इट डिपेंड्स अब कौन ले रहा है इस बार लेक्चर. Then I would tell you all that if you all want to go for mock test and all, you know people say कि हमें पता ही नहीं है टेस्ट कहाँ से देनी है. अरे तुम्हें पहले से जब पैदा हुए थे तब पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज एआई? चैट जीपीटी यूज करना आता था? नहीं ना. असाइनमेंट्स वगैरह देते हो, कॉपी करना आता था? एग्जाम में आगे वाले की व्हेन यू सी दैट हाँ माय फ्रंट पर्सन इज ड्राइंग दिस, लेट मी ड्रॉ दैट, वो आता था? नहीं ना, देख के समझे ना. मॉक टेस्ट दोगे तो प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन समझ आएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड. So there are lot of apps on Play Store वगैरह, lot of different this thing. मेरा खुद का भी एक mock test का वो है, that also you can take, what you say, MCQs का ये है, ठीक है. This you can download all of this. Okay. Subject wise मोस्टली 30 क्वेश्चंस आते हैं फार्मास्यूटिक्स से. ये पैटर्न जो है बदल चुकी है. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ऑल्सो 30, फार्माकोलॉजी से 25, कॉग्नोसी से 10. सो you know this pattern is fixed. हमें पता है कि हमारे 70 क्वेश्चंस अराउंड कोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सुटिक्स ही है, तो भी हम छोड़ के जाते हैं ये क्वेश्चन को. यस, एम आई राइट? आई होप हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. यस, चलो चलो आगे बढ़ेंगे क्या. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट 5 स्लाइड्स दैट आई एम गोइंग टू प्ले, प्लीज लीव मत करना कोई भी. उसके बाद चाहो तो लीव कर दो, कुछ भी कर दो. अगले 5 स्लाइड में लीव मत करना, ठीक है. ये सारा वॉट एवर इज देना, टेक स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट वाइज हैं. किससे क्वेश्चन आते हैं? माइक्रो से आता है, रियो से. दिस इज नॉट फ्रॉम 1 ईयर एनालिसिस, दिस फ्रॉम लास्ट 4 or 5 years of analysis, right? So you must be knowing about all of this: complexation, rheology, micromeritics, calculation based, solid state, tablet capsules, aerosols, parenterals, cosmetic पे vanishing cream. अच्छा चलो मुझे बता दीजिए, vanishing cream and cold, मैं थोड़े से क्वेश्चन खेलता हूँ. लेट मी प्ले रैपिड फायर फॉर नेक्स्ट 5 minutes विथ योर, सो दैट आई कैन नो कि ऑडियंस जग रही है. तो मैं कुछ 6 क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आपको 5 क्वेश्चन उसके जवाब देने हैं, ठीक है. चैट बॉक्स में जो जिनको शर्म आ रही है वो बस एटलीस्ट सुने और देखे कि आपको याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है. एंड दोज हु आर कंफ्यूज्ड वो भी सुने, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क इज फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स, ठीक है. सो कैन यू टेल मी दैट इन द एरोसोल्स टैग ओपन कप अपैरेटस, ये क्या मेजर करता है? टैग ओपन कप अपैरेटस क्या मेजर करता है? कैन समबडी टेल मी? एवरीबडी ऑन यूट्यूब एज वेल. टैग ओपन कप अपैरेटस, टैग ओपन कप अपैरेटस. एरोसोल्स में सुना ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना क्या? इज इट? Haven't we heard the name? Tag open cup apparatus. Yes? Nobody is replying, मतलब नहीं सुना है. Flash point. Yes, flash point. Yes, absolutely. Fire frame projection rule के लिए अलग होता है. Flash point के लिए है tag open cup apparatus -25 degree Fahrenheit. Very good, Divya, who replied on chat box on sorry YouTube. चलो, everybody, can you tell me, अगला cognizy से है. Can you tell me that Phyllanthus embolica is a source of which vitamin? Vitamin A, B, C, D. Phyllanthus embolica. Phyllanthus embolica is a source of which vitamin? Vitamin C, correct. Ascorbic acid, आमला. आमला को इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, फैमिली यूफोरबेसी है. When I ask you one thing, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा आपको, विटामिन कौन सा है, उससे रिलेटेड मुझे उसका ड्रग याद आया, मुझे उसका सोर्स याद आया, मुझे उसकी फैमिली याद आई. व्हेन यू नो पीपल आर कंफ्यूज, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारी प्रेपरेशन कैसी है. जज करना है ना, मैं आपको एक टॉपिक फेंकूंगा, अगर इफ यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक तो आप इजीली उस टॉपिक से बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मैं डिगॉक्सिन बोलूं तो डिगॉक्सिन सुनते ही आपको डिजिटालिस पुरपुरिया, डिजिटालिस लनाटा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड याद आना चाहिए. केलर के लिए टेस्ट याद आनी चाहिए. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फार्माकोलॉजी में पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट यूजफुल इन हार्ट फेलियर याद आना चाहिए. कोग्नोसी भी याद आना चाहिए, सुटिक्स भी याद आना चाहिए.
स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सीजेनिन, शुगर, ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन, ये भी याद आना चाहिए सर. हाउ टू रिमेंबर द फैमिलीज ऑफ ऑल क्रूड ड्रग्स? Well, that is really difficult. But if you ask me, most of the drugs have similar families. Solanaceae, काफी drugs की Solanaceae family है. Apocynaceae, most of the drugs have Apocynaceae. Some drugs के तो नाम में ही है. Euphorbia आंवला की है ना. Taxaceae, Taxus की family है. कुछ तो the families are from the name. Then है Ephedraceae, Ephedra की Mahuang की family है. So most of the drugs have those families. Some drugs जिसकी family common है, make a flow कि हाँ Apocynaceae की family ये में ये आते हैं, Solanaceae में ये, Leguminosae में ये आते हैं, Rutaceae family में ये सारे आते हैं, Myrtaceae में clove आता है, Lauraceae में cinnamon आता है, Rubiaceae में, these kind of things you can remember it your way, है ना. तो that's the best way to remember things. Yes. कोई सो तो नहीं रहा, दोपहर बिगाड़ी है मैंने. क्रिसमस के बाद सारे, आई होप नोबडी स्लीपिंग आउट देयर. ठीक है, चलो. मे आई नो योर कॉलेजेस, फ्रॉम व्हिच कॉलेजेस वी ऑल कम फ्रॉम? यस, एक बार अपने कॉलेज का नाम बता देंगे जो लोग यूट्यूब पे हैं वहां पे भी. एंड विगनन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एंड विद द स्टेट और विद लाइक मुंबई, महाराष्ट्र, एनसीआरटी, स्टर्लिंग. ओके ओके, स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट. ओके, वीवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी. ओके, Viva mein I have lot of students over there. Gaurav, Sanika, yeah. YB Chauhan College of Pharmacy. Okay, Aurangabad. Yeah, YB Chauhan se I think so I have Swapnil Guge. He was my student. Isha from Ideal Institute. Okay. Ratin from Bombay College of Pharmacy. Okay. BCP, Krishna Nair sir and Anuradha Majumdar ma'am. Good. Ketan Shinde from Bal Chandra College of Pharmacy, Pune. Okay, Pune. वीवा इंस्टीट्यूट, आरती. ओके, अर्चना मैम को मेरे रिगार्ड्स देना. ठीक है, गुड गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. विल्फ्रेड इंस्टीट्यूट, पनवेल. ओके, एक्सेस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उत्तर प्रदेश. ओके, बढ़िया 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 बढ़िया. ठीक है ठीक है. सो देख रहे आपका कंपटीशन यहाँ इसमें ही कितने सारे कॉलेजेस से अलग अलग बन रहे हैं. राइट, सब या भारत टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल. ओके, अरूप. अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी. यस, आई नो दैट. ओके, महाराष्ट्र. ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ओके, आई होप एवरीबडी इज देयर विद मी. यस, फ्रेश है. चलो आगे बढ़ेंगे. चलिए 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 चलिए. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? अगर दिखना बंद हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि वो लाइव दोनों जगह पर है तो बहुत मुश्किल होती है दोनों जगह पे. ठीक है, जस्ट क्विकली टेल मी. चलिए आगे बढ़ेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी आइसोमर्स पे आ जाते हैं. ठीक है, आइसोमर्स पे जैसे सिट्रीजिन का कौन सा आइसोमर एक्टिव है, कोई बता सकता है? वॉरफरिन का कौन सा आइसोमर एक्टिव है, कोई बता सकता है? आइबुप्रोफेन का कौन सा आइसोमर एक्टिव है, कोई बता सकता है? कीटोकोनाजोल का कौन सा आइसोमर एक्टिव है? कैन समबडी टेल मी? इतने सारे ड्रग्स के नाम ले लिए. लेवो का, सॉरी, सिट्रेजिन का लीवो आइसोमर है, वॉरफरिन का एस माइनस आइसोमर है, आइबुप्रोफेन का एस प्लस आइसोमर है, कीटोकोनाजोल का सिस 2R आइसोमर है. यस, आइसोमरिज्म पे आते हैं क्वेश्चन. ई जेड, डॉक्सेपाइन का जेड आइसोमर एक्टिव है. ठीक है, फिर एक और ड्रग है डाइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल, DES, उसका ट्रांस आइसोमर एक्टिव है. These are very common questions that are very frequently asked. Okay, okay. कळलं, लक्षात आलं सगळ्यांना? बधाने समझ आई हूँ, सबको समझ आया? हाँ जी, चंगा है. आगे बढ़ेंगे. चलिए चलिए, मुझे 5-6 भाषा आती, मैं बात कर सकता हूँ 5-6 भाषा में. ठीक है, ऐसे मत समझना तुम्हारी भाषा में तुम सो जाओगे इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी. राइट, कैन वी मूव अहेड? फार्माकोलॉजी. सो फार्माकोलॉजी से मोस्टली जनरल फार्माकोलॉजी से एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, एंड मेरा जो ये सेशन है इट्स नॉट गोइंग टू बी वन साइडेड. अब जैसे मैंने जनरल फार्माकोलॉजी बोला, क्या मुझे जल्दी से तुम बता सकते हो कि 4 टाइप के रिसेप्टर कौन से होते हैं बॉडी में? एक मैं तुम्हें बता देता हूँ. चलो, सबसे हार्ड वाला, GPCR. बाकी के 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कैन यू टेल मी? पायल, ईशा, रॉयल गेमिंग. ओ, रॉयल गेमिंग नाम ही है. संकेत, अरूप, सृष्टि, संध्या, आरती, वर्षा, केतन. यस, कैन यू टेल मी? यस, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे? Can anybody help me out?
ligand gated G protein, enzyme linked nuclear receptors. Very good, Divya, Akanksha on YouTube, and यहाँ पे भी जितने लोगों ने भी जवाब दिया है, very good. एब्सोल्युटली। तो अब इनमें से पूछ लेते हैं कि विच इज द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ये क्वेश्चन आया है जीपैट में। अरे दिमाग लगाने की बात, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड, सुना भी नहीं होगा ना, नाम से भी कोई बता देगा इंट्रासेल्युलर कौन सा है। बताओ कौन सा है? लिगैंड गेटेड जी प्रोटीन, एंजाइम लिंक्ड या न्यूक्लियर? अरे नाम में ये न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल में ही होता है। इंट्रासेल्युलर विद इन द सेल, जीपीसीआर एक्स्ट्रा सेल्युलर है, बाहर होता है अंडर ट्रांस मेम्ब्रेन, राइट? So, नाम में ही है। समटाइम्स समथिंग आर वेरी लॉजिकल, इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड, वो आपके जहन में आ जाएगी। ठीक है, यस, अभी दे, चलिए बहुत बढ़िया। एएनएस में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सीवीएस में वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट फ्रॉम योर हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमिया टू योर हाइपरलिपिडेमिया वगैरह, काफी क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेटरी से मोस्टली एस्थमा पे यू कैन एक्सपेक्ट गुड क्वेश्चन। जैसे इफ आई टॉक अबाउट which is an example of a mast cell stabilizer out of this, Montelukast, Zafirlukast, Ziluton और sodium chromoglycate. Can you tell me कौन सा है? बता सकते हो कौन सा है? Yes, can you tell me कौन सा है? चलिए जल्दी जल्दी से। Montelukast, Montelukast mast cell stabilizer. Yes. घाई 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 में, yes. प्रोकाइनेटिक्स एंटी एमेटिक्स में होते हैं, वेरी गुड। yes, sodium chromoglycate is an example of this thing, very good. Sodium chromoglycate is an example of a mast cell stabilizer, while Zafirlukast, Montelukast and leukotriene antagonist, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, these are not my made questions। ठीक है, जीआईटी में मोस्टली अल्सर्स पे आते हैं, राइट? सिमिटिडीन, पैंटोप्राजोल कौन सा पंप इनहिबिट करता है? यस, कैन यू टेल मी पंप कौन सा इनहिबिट होता है पैंटोप्राजोल से? यस, कृष्णा, माय वर्ल्ड, दिव्या, आकांक्षा, कैन समबडी टेल मी? हाइड्रोजन पोटेशियम एडीपीएस पंप, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, लय भारी, एक नंबर। चला पुढे चला, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर आस्क्ड फ्रॉम कीमोथेरेपी आर योर एंटी कैंसर and your antibiotics. कंपल्सरी इससे 3 क्वेश्चन लिख के चलो आएंगे, 100% लाइव पे बोल रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। 100% इनसे 3 क्वेश्चन मिनिमम, यानी 12 मार्क्स जो रैंक ऊपर नीचे कर देंगे, आएंगे। हम फिर भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, एंटी कैंसर और एंटीबायोटिक्स, है ना? नाउ इफ आई टेल यू, गिव मी एग्जांपल ऑफ दोस ड्रग्स दैट ब्लॉक 50S राइबोसोमल सब यूनिट। कौन से हैं वो ड्रग्स जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक करते, बता सकते हो? यस, इशिता इज फ्रॉम विनफ्रेड इंस्टीट्यूट। ओके, सॉरी, मैंने यूट्यूब पे देखे नहीं था आपके कॉलेज के नाम। ओके, गुड। ये पनवेल में विल्फ्रेड, पनवेल में आई थिंक सो देयर इज AIKTC आल्सो, नो? AIKT, कालसेकर कॉलेज और समथिंग। सेंट जॉन इज इन पालघर। Okay, linezolid, okay, very good. Linezolid inhibits 50S ribosomal unit. Chloramphenicol, शाबाश, chloramphenicol inhibits लिंकोसमाइड, yes, clindamycin inhibits 50S ribosomal subunit. मैक्रोलाइड से किसी को प्यार नहीं है? हाँ, azithromycin, very good जतिन, azithromycin वगैरह से किसी को प्यार नहीं है? yes, clarithromycin, erythromycin, azithromycin। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे क्या? Can we move ahead? Is the energy high? Is the energy high? चलिए, pharmacognosy का if I talk about, so mostly from pharmacognosy we can expect good questions coming up in the domains of secondary metabolites, tannin, alcohol, glycoside, flavonoids। या तो आपको पाथवे पे पूछ लेगा, शिकेमिक एसिड पाथवे, so you should be aware कि शिकेमिक एसिड से कौन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, लाइक ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलैनिन, टाइरोसिन। या तो फिर आपको वो वैल्यूज पे पूछ लेगा, एसिड, दोज वैल्यूज, स्टोमाटल इंडेक्स, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, व्हिच काइंड ऑफ क्रिस्टल्स। तो अभी मैं पूछूं आपको कि कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ अ ड्रग दैट हैज लिग्निफाइड ट्राइकोम्स? तो कौन से हर्बल फार्माकोग्नोसी ड्रग में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है? शाबाश सृष्टि तिवारी, क्या बात है, लय भारी, बहुत अच्छा। नक्स वोमिका जिसको हम क्रोज फिग के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रिक्नीन एंड ब्रूसीन जिसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी फेमस अल्कलॉइड, राइट? नक्स वोमिका। सो यक्स वोमिका में है आपके पास लिग्निफाइड ट्राइकोम्स, सही जा रहा है? यस।
वेरी गुड कृष्णा रवात, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या एनालिसिस की मैं बात करूं तो मोस्टली फ्रॉम एनालिसिस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज यूवी विजिबल से स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी 100% देयर हैज टू बी क्वेश्चंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी आईआर एचपीएलसी 100% इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फॉर श्योर। बहुत पूछते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी से। मिनिमम 3 क्वेश्चंस लिख के रखो, इससे आएंगे। अब एचपीएलसी में दे कैन आस्क ऑन वैन डीमटर्स इक्वेशन, या तो दे कैन आस्क यू ऑन द पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप, या तो ऑन इंजेक्टर रियोडाइन इंजेक्टर, या तो ऑन द कॉलम गार्ड कॉलम C18 कॉलम, या तो ऑन द डिटेक्टर्स थर्मल कंडक्टिविटी फ्लेम और सॉरी वो तो गैस क्रोमेटोग्राफी के है, या तो ऑन द डिटेक्टर्स बल्क प्रॉपर्टी सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स। किसी ना किसी पे तो वो जरूर प्रश्न पूछेंगे आपको, ठीक है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। यस, समझेंगे, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना। चलिए मेडिकेम तो आई डोंट थिंक देयर हैज टू बी ओके। ये हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तब तक। बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी से यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अप टू 4, 2 माइक्रो से एक क्वेश्चन स्टरलाइजेशन से पक्का है। स्टरलाइजेशन से नहीं आया तो सोर्स से आएगा। ओके, सो जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा उन्हें जगा दिया जाए। जल्दी जल्दी से मुझे बता सकते हो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले कौन से एंटीबायोटिक का सोर्स है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले कौन सी एंटीबायोटिक का सोर्स है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले कौन से एंटीबायोटिक का सोर्स है? बता सकते हो मुझे जल्दी जल्दी से? कैन यू प्लीज टेल मी? कैन यू प्लीज टेल मी? क्लोरामफेनिकॉल का, शाबाश। एंड कैन यू टेल मी कौन से स्टरलाइजेशन में we have 121 degrees for 15 psi for 15 minutes? कौन सा है ये और ये क्या है? कौन सा है ये और क्या है, बता सकते हो? ऑटोक्लेव है, शाबाश, ऑटोक्लेव है। लक्ष्य तालक है। सबको समझ आया क्या ऑटोक्लेव? यस, कोई नई चीज थी क्या? नहीं ना, पता थी ना मैं पहले से ही। यस, एनीथिंग न्यू फॉर अस? चलिए, एंड मुझे एक और प्रश्न था, मुझे बता सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी से ही था, स्टेनिंग पे है कि कौन सी स्टेनिंग में वी यूज कार्बोल फ्यूस्टीन, वी यूज मिथिलीन ब्लू, वी यूज एसिड अल्कोहल मिक्सचर एज अ डीकलराइजर? बता सकते हो मुझे? कैन यू टेल मी? वेरी गुड, एसिड फास्ट स्टेनिंग, शाबाश, खूप चांगलं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में होता है, राइट। एंड ग्राम स्टेनिंग में भी आप क्रिस्टल वायलेट एंड मिथिलीन ब्लू और सैफ्रन, राइट। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप सबको? एंड कैन यू सी बूस्टर कोर्स का, राइट। सो थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, मोस्टली ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, बट यस फॉर यू आई वांट कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे अगले 2 महीनों के लिए। सो दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो लॉन्च्ड अ वेरी वेरी फीजिबल कोर्स। काफी सस्ते में है, 1000 रुपीज, जो यू ऐसे ही उड़ा दोगे क्लब वब में जाके समवेयर। It's just 1000 rupees. So for y'all, if y'all join today by 8 p.m. So it is a course where you have 1200 rupees, but if you join before 8, it will be 1000 rupees, where you'll be provided with the around 25 plus lectures, live lectures and recorded lectures भी मिलेंगे उस live के। if you are not able to attend it live, you will get free e-notes। drive link है, तो मेरी drive आप सबको दिख रही है, ये देखिए, ये drive पूरी की पूरी drive link है GPAT बूस्टर कोर्स की। इसमें सारे GPAT के नोट्स वगैरह है। एंड ये मेरी खुद की पर्सनल ड्राइव लिंक भी है यहाँ पे, जिसमें सारे GPAT के नोट्स वगैरह देख सकते हो। ये पूरे नोट्स उसी के हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट अ कंप्लीट ड्राइव लिंक एज वेल। आई एंड ये देखो, ये पूरी लिंक्स वगैरह, ठीक है, ये सारी ड्राइव लिंक्स आपको मिलेगी इस कोर्स में। एंड ऑफ कोर्स यू हैव लॉट ऑफ रिवीजन एंड लास्ट मंथ कैसे पढ़ना है। एंड मैं खुद ही पर्सनली आपको कॉग्निसीव एंड कॉलोजी खुद पढ़ाऊंगा, आई विल बी टीचिंग माई सेल्फ।
सो आई विल मेक श्योर, क्योंकि मैंने 7 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करे, तो मैं आपको उन 7 एग्जाम्स पे बताऊंगा। इफ यू आर टारगेटिंग सम अदर एग्जाम्स अदर देन जीपैट, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा कि वहां पे आपको क्या चीज पढ़नी है, सो दैट यू गेट एन आइडिया। एंड द फॉर्म फॉर दैट इज इन द चैट बॉक्स. You can just fill the form if you are interested, and you can scan this and register if you are interested. ठीक है, आप सोच लो आराम से रात तक, and then you can just think about it. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी मेन चीज पे. या लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इज इन द चैट बॉक्स. एंड यूट्यूब के लिए मैं लिंक जो है वो डाल देता हूँ. जस्ट अ मिनट. यूट्यूब के लिए जो है मैं लिंक डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन इजीली this thing. Just a minute. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन फेंकता हूँ. उन क्वेश्चंस के मुझे आंसर बता सकते हो तुम? कैन यू टेल मी के कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका ये एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम कैनरीनॉन है? कौन सा ऐसा ड्रग है जिसके एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम कैनरीनॉन है? कैन यू टेल मी द ड्रग्स नेम whose active metabolite is canrenon? Can you tell me that drug's name जिसकी एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम है कैनरीनॉन? यस, कोई मुझे बता सकता है उस ड्रग का नाम? स्पाइरोनोलैक्टोन. स्पाइरोनोलैक्टोन है उस ड्रग का नाम. वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है. स्पाइरोनोलैक्टोन, राइट. पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, करेक्ट. इट्स अ पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक. यस, विल बी रिमेंबर दिस. याद रहेगा ये. चलिए वापस आ जाएंगे हमारे स्ट्रेटेजी की ओर. कैन वी कम बैक टू अ स्ट्रेटेजी? चलिए, बहुत बढ़िया. सोया तो नहीं है ना कोई? नोबडी स्लीपिंग, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया. So I was talking about what are the questions that can be asked from biochemistry and microbiology. So mostly इससे आप expect कर सकते हो enzymes, vitamins वगैरह पे आते हैं. जैसे enzyme में कौन सा equation है? MM मिठाई वाला. What is MM? Michaelis-Menten equation, right? Then there are questions that have been asked on vitamins, right from the source, vitamin B and C. कौन से vitamins किस में देते हैं, कौन से vitamin की deficiency, like we have osteoporosis, we have night blindness. बता सकते हो night blindness कौन से vitamin की वजह से होती है? Night blindness is due to deficiency of which vitamin? विटामिन ए. वेरी गुड, राइट. रेटिनॉल, रेटिन, ऑप्सिन, रेटिनॉल, ये आपके आई के पिगमेंट्स होते हैं, राइट. उसकी वजह से ये डिजीज होती है, करेक्ट. So this is a very common question that I've been asked. Qualitative test for carbohydrates, and very good. Those who are typing on YouTube, don't worry, मैं आपके भी chats देख रहा हूँ, तो आप लिखते रहिएगा. Okay. Then when I talk about the qualitative evaluation, so मुझे कुछ टेस्ट के नाम बताओ ना कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपने करी होगी इन सेमेस्टर 1. I think so. You all are COVID batch, so I don't think आपका online offline होगा, right? Online होगा, I think so. Yes, Felling, very good. Somebody has written Felling test, Molish test, Benedict, very good. क्या बात है. किसी को लगता है सेलिविनॉफ से प्यार नहीं है? Nobody is liking सेलिविनॉफ, है ना? कोई इसलिए उसका जिक्र तक नहीं कर रहा. ऐसी बात है. Barford, very good. Barford is for monosaccharides, है ना? And for proteins, proteins के कुछ टेस्ट बता दो यार, that are very frequently asked. एक तो हमारा फेवरेट बायोरेट. अल्फा अमाइनो एसिड्स डिटेक्ट करना है तो निनहाइड्रिन. यस, आर वी देयर? आर वी ऑल देयर? निनहाइड्रिन, बायोरेट. देन देयर इज सागाकुची फॉर अर्जिनिन अमीनो एसिड. हॉपकिन कोल फॉर ट्रिप्टोफैन. यस, याद आ रहा है सब कुछ? अगर आपको याद नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप बहुत पीछे हो, ठीक है. मैं फैक्ट बोलता हूँ, आई नेवर शुगर कोट. यू नीड टू वर्क अप और हॉट. और अगर आपको धुंधला धुंधला सा है, हाँ यार ये सुना था लेकिन याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है. और अगर आपको याद आ रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू रिमेंबर द, जैसे मैं पॉलीज टेस्ट बोलूँ तो इमिडाजोल के लिए, इमिडाजोल है तो कौन सा अमीनो एसिड? हिस्टिडीन. इतना भी याद आ रहा है तो फिर मस्त जा रहे हो, लाइफ में अच्छा करोगे. इमाइनो अमाइनो एसिड, प्रोलीन, है ना? इफ यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट, सो दैट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड. इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग, जैसे अगर मैं बोलूं लेप्रोमिन टेस्ट किसके लिए होती है? लेप्रेसी. मैंटॉक्स टेस्ट किसके लिए होती है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. विडाल टेस्ट किसके लिए होती है? यस, बता सकते हो विडाल किसके लिए होती है? कैन यू टेल मी? आज के दिन आपको शांति तो लेनी नहीं है, ये वेबिनार तो बाई डायरेक्शनल है भाई. यू हैव टू. अच्छा,
Vidal is for typhoid. क्या बात है, very good, right? So these are very commonly asked questions. ये सब आपको मिल जाएंगे इनामदार वगैरह बुक्स वगैरह में. So you won't have to worry. सर बैलेंस कैसे करें सेमिस्टर को एंड जीपैट को? अरे भाई, सेमिस्टर्स के सीजीपीए कोई तुम्हें पूछता है? Is there anybody who's going to ask you the CGPA for your semester? If this many CGPA if you get it will be good or something like that? No, right? जीपैट की रैंक पूछते हैं, मुझे आज भी पूछते हैं लोग. सो फोकस मोर ऑन जीपैट. अगर आप सेमिस्टर्स का पढ़ रहे हो ना, इनडायरेक्टली आप जीपैट का पढ़ ही रहे हो. सेमिस्टर इज अ पार्ट ऑफ जीपैट, लेट मी टेल यू दिस. तो डोंट थिंक कि आपके सेमिस्टर में 1 आ गए 2 आ गए रैंक. मेरी आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर ऑल 8 सेम इन माय बी फार्मेसी एंड आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एज वेल. मैंने अपना बैचलर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से किया. आई एम करंटली परस्यूइंग माय I'm in my second year masters in pharmacology from Naipur Mohali. ठीक है, तो let me tell you this कि during my masters during my bachelor's semester के marks किसी ने नहीं पूछे मुझसे, rank पूछते हैं. So let me tell you this कि rank for GPAT, so focus more upon GPAT. इसलिए इसमें GPAT का पलड़ा भारी है. ऐसे मत समझो semester का beam ऊपर है तो focus more on that. Next lecture we will give information on GATE. Okay, yeah, sure. We will be providing information on GATE as well. And even in the course, I will be teaching you all with GATE aspects as well, Srishti. तो जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले इसमें गेट भी काफी इंक्लूडेड है. केमिस्ट्री, कोलॉजी, माइक्रो बायोकेम एंड बायोटेक, वो गेट का पार्ट होगा. दैट विल बी कवरिंग. That information we'll be providing in the next lecture maybe if we get a good response and good feedback during this session. Okay, maybe we'll arrange another session, don't worry. So ज्यादा पलड़ा जीपैट को दूं, ठीक है? ये मैंने स्पेशल इमेज बनाई है so that you all come to know. ये भूलना नहीं है, जीपैट को ज्यादा फोकस देना है. अब the next thing that you have to do is take screenshots. तो मैंने ना आपके 8 सेम है, देख सकते हो. तो मैंने सेमिस्टर वाइज आपके हर 8 सेम में हर एक 4 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम है ही, करेक्ट? सो मैंने ना आपके लिए आप लिस्ट डाउन फ्यू टॉपिक्स that you will come to know. So I will of course not discuss everything in detail because we just have half an hour, how much time, 40 minutes left more. But yes, मैं आपको बस दिखाते जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है बेसिकली. अब हीमोग्लोबिन लिख दिया तो हीमोग्लोबिन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक. जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हाउ मेनी बाइंडिंग साइट्स है, कितने बाइंडिंग साइट्स है हीमोग्लोबिन के, बता जा. कैन समबडी टेल मी हाउ मेनी बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन? कितने बाइंडिंग साइट्स होते हैं हीमोग्लोबिन पे? आयन बाइंडिंग साइट्स होते हैं कितने? जैसे EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगैंड, राइट? 6 साइट्स होते हैं. सो कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स? वेरी गुड. किसी ने YouTube पे ऑलरेडी आंसर कर दिया है. गूगल मीट वाले अभी भी नहीं है, पीछे हटे हैं. 3, 4, 5 या 6 ऑप्शन दे रहा हूँ. आई एम गिविंग ऑल ऑप्शन 3, 4, 5 और 6. यस, कैन समबडी हेल्प मी आउट विद दैट? 6 बाइंडिंग साइट्स. ये तो EDTA की हो गए, EDTA के हो गए 6 बाइंडिंग साइट्स हेक्साडेंटेट. वेरी गुड. 4 है. Hemoglobin can bind to 4 iron molecules or it can carry 4 iron molecules, right? So you must know about this. तो ब्लड क्लॉटिंग में पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब फार्मास्यूटिक्स की मैं बात करूं, सो मोस्टली देयर आर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड ऑन कैलकुलेशंस, काफी कैलकुलेशन, पोसोलॉजी बेस्ड वगैरह. ये सारा हम कवर करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ड्यूरिंग द course. Okay, don't worry, out of these topics we'll be trying to covering maximum of them. Suspension, emulsion, whatever will be feasible. तो ये सब टॉपिक्स, दिस इज अब ऑफ्थैल्मिक तो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, इसमें क्या पढ़ना है ये भी हम आपको डिटेल में तब बताएंगे. इमल्शन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक. डू वी हैव टू स्टडी इवैल्यूएशन, टेस्ट, डाई, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, फ्लोरेसेंस और टाइप्स ऑफ इमल्शन? जैसे कौन सा इमल्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल? कैन यू टेल मी? O/W. Yes, I can see my few students as well on YouTube. बहुत अच्छा लगा उनको देखकर. Yes, I can see few of them back on YouTube. Yes, micro emulsion और multiple. बता सकते हो इन चारों emulsion में से which emulsion is a thermodynamically stable emulsion? क्या बात है, very good Mariam, Afiza, Arup, very good. Micro emulsions is the right answer. So यही सब चीजें we'll be discussing live MCQs as well, जहाँ पे आपको एक you get a hands-on ability to solve the questions. आपको कितना टाइम लग रहा है और how much time is taking for your brain to buffer things and process things, right? Then inorganic chemistry, so these are the questions that can appear. Similarly from analysis, तो ऐसे individually हर subject के मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, आप देख सकते हो. Sem 2 में
वी हैव HAP, बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम्स को एंजाइम पे. अब ये तो इन जनरल इट्स वेरी बिग. एंजाइम में यू डू हैव टू स्टडी लाइन-वीवर-बर्ग्स प्लॉट. डू वी हैव टू स्टडी ऑटहिल? ऑटहिल क्या है? ऑटहिल का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी से. कैन आई हैव अ आंसर फ्रॉम योर? ऑटहिल का फुल फॉर्म बताओ. ऑटहिल का फुल फॉर्म बताओ. यस, कैन आई हैव फ्यू आंसर्स प्लीज? यस, ऑटहिल ऑक्सीडो रिडक्टेस. चलो एक मैं बता देता हूँ. मतलब सत्यनारायण बुक नोबडी हैज स्टडीड, राइट, बायोकेमिस्ट्री की. इज दैट? क्योंकि सत्यनारायण पढ़ी होती तो ये पता होता ऑटहिल क्या है. ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइस, लाइगेज. These are all types of enzymes that you study. Okay, all the types of enzymes. अब इसमें आप क्या आएंगे, हेक्सोकाइनेस वगैरह सारे. These are all enzymes that. हेक्सोकाइनेस कौन से पाथवे में आता है? बता सकते हो हेक्सोकाइनेस कौन से पाथवे में आता है? 5 options are 4 options for all are glycolysis, Krebs cycle, gluconeogenesis, या none of the above. वेरी गुड. ग्लाइकोलिसिस में है ना, ये याद आया. हेक्सोकाइनेस फर्स्ट स्टेप ही है हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस का. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है. सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट विल बी कवरिंग ड्यूरिंग द सेशन. केमिस्ट्री से कौन से नीम रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वी हैव कोलबे, रीमल्टाइमैन, वुल्फ किश्नर, क्लेमेंसन, है ना, शॉर्टनबॉर्गमैन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, you have Curtius. You have so many different name reactions that you have to study. Pinacol, pinacolone rearrangement, Claysen's condensation, Schmidt rearrangement. Then you have अलग-अलग condensation के types, aldol, Cannizzaro, Perkins. So पढ़ना कैसे है name reactions को, that we will be covering during the course as well. And अभी भी मैं थोड़ा बता देता हूँ. Of course, I can help you out with that. Catalyst पढ़ने हैं, reagent पढ़ने हैं, टेम्परेचर कंडीशन पढ़नी है, एंड प्रोडक्ट पढ़ना है. क्या डिफिकल्ट है? यस, व्हाट इज डिफिकल्ट? अब डायजोटाइजेशन नाम लिया तो यू शुड क्विकली हैव दैट थिंग. डायजोटाइजेशन आपने केमिस्ट्री में किया है, लैब में भी सॉल्व किया, 0 to 5 डिग्री, राइट. आइस बात में करते थे ये रिएक्शन, राइट. डायजोनियम सॉल्ट बनता है इसमें, N2+Cl-, डायजोनियम सॉल्ट इन डायजोटाइजेशन. वेरी गुड. एनालीन इज द फाइनल दिस थिंग. वेरी गुड. किसी ने लिखा भी है मेरे चैट बॉक्स में, ग्लू इसमें यूट्यूब पे. वेरी गुड सर. नेम रिएक्शन काफी है, कैसे करें? मैं आपको एक लेक्चर में 30+ नेम रिएक्शंस याद करवाऊंगा, एंड मैं टोटल हैव टू स्टडी ओनली 58 नेम रिएक्शंस दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जीपैट. तो इफ यू गेट इनटू द कोर्स डेफिनेटली आपको और भी उस पे इनसाइट्स मिलेगी. ठीक है, बाकी के लिए डो वरीज. बेयर विनेगर वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, सो दैट विल कम टू नो. पैथोफिजियोलॉजी से हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस आते हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया पे. अच्छा, जिक्र किया है मैंने. सो कैन यू टेल मी, मैंने कही सकसो तमे लोको मला एक सांगा, मी विचारते तुम्हाला एक प्रश्न. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको. हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया में से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स कौन सा है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स कौन सा है? इफ आई आस्क यू दैट कैंसर में ये हो रहा है, क्या हो रहा है? हाइपरट्रोफी होता है या हाइपरप्लेसिया? हाइपरट्रोफी भी होता है वैसे, बट कैन यू टेल मी मेजर चीज जो कैंसर में होती है? What happens? Increase in the number of cells. And what is the increase in the number of cells called? Very good. Hyperplasia. Very good. Rakin, Tendulkar, Payal, Srishti, Shrital, Arup, Shubham, Abhinav. Everybody who answered that. Isha, Aarti. Right, on YouTube. Elon Musk, Knowledge, Pharma, Divya. Everybody who answered. Very good. Utkarsh. Utkarsh, good to see you. बहुत सारे स्टूडेंट्स को वापस देख के बहुत अच्छा लगता है. यस, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया. So these are very common things that are very frequently asked. Hyperplasia, number of cells बढ़ रहे हैं, and cancer में बढ़ रहे हैं, right? So you should have an idea about this. And then semester 3, तो ये सारे नेम रिएक्शंस ये मेरी खुद के बनाए हुए हैं, तो ये आपको नोट्स में मिलेंगे हमारे, इफ यू परचेज द कोर्स. सारे नेम रिएक्शंस वगैरह. फिजिकल फार्मेसी से क्या पढ़ना है? व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, व्हाट इज नर्स पोटेंशियल, व्हाट इज HLB स्केल. अच्छा, HLB स्केल में इफ आई टॉक अबाउट 7 to 9, क्या है 7 to 9 में? कौन से आते हैं HLB स्केल में? 7 to 9 आया तो O/W है, W/O है, वेटिंग एजेंट है, डिटर्जेंट है. व्हाट इज इट? यस, लवकर सांगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी को मने.
अजी जल्दी दसो। हाँ जी बताएंगे। वेटिंग एजेंट, शाबाश, वेटिंग एजेंट है 7 to 9 में। यही क्वेश्चंस है, these are the exact questions that we are going to cover and we are going to have a you know a glimpse about that. IMVIC टेस्ट, इंडोल मिथाइल रेड वोगस प्रोस्कोबस सिट्रेट टेस्ट पे एक दो बार आता है। DZF तो पक्का आता है, फेवरेट क्वेश्चन है। 3 years कंटिन्यूअस D वैल्यू पे एंड F वैल्यू पे क्वेश्चन आया है, तो अब आया है तो मैं भी एक थ्रो कर ही देता हूँ आप लोगों को। इनमें से यूनिट ऑफ लेथैलिटी या नॉन स्टेरिलिटी वैल्यू किसको बोलते हैं? Which value is called as unit of lethality or non-sterility? सर तुम्हाला मराठी, yes मुझे मराठी आती है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ नहीं, but that is not a topic. Please stay on the discussion. We'll stay with the discussion, right? Anti-foaming agents 1 2 3 होते हैं, yes very good. F value, okay, most of them say F value, बिल्कुल F value is the unit of lethality or non-sterility. D value is a decimal reduction value, राइट? तो यही क्वेश्चंस पूछते हैं वो काफी बार। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से 4 years लॉ किससे है? अच्छा मुझे बता सकते हो कि इम्पैक्ट एंड अट्रिशन कौन से साइज रिडक्शन मशीन का प्रिंसिपल है? इम्पैक्ट एंड अट्रिशन सांगा मला, मुझे बता सकते हो? वेरी गुड, बॉल मिल। फ्लूइड एनर्जी का नहीं है क्या? फ्लूइड एनर्जी का नहीं है, जैसे हैमर मिल का सिर्फ इम्पैक्ट है। यस, अभिनव, सृष्टि, खतीजा, शुभम, यस, कैन यू टेल मी? फ्लूइड एंट्री, फ्लूइड एनर्जी मिल, ओके वेरी गुड। फ्लूइड एनर्जी मिल का भी इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन है। सो सेमेस्टर 4 में, सो यू नो बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग के लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम जीपैट का सिलेबस इज लाइक एन ओशन, जितना पढ़ो उतना कम है। तो हर सेमेस्टर वाइज आई हैव सेग्रीगेटेड दिस ताकि आपको पता चले कि आप इस सेम से इतना पढ़ो, बिकॉज वी मोस्टली आर, मोस्ट ऑफ अस आर इन आइदर सेमेस्टर 5 6 7 और 8 जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो आपको पहले 5 सेम का तो पढ़ाना ही होगा। तो ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक से भी देयर आर सर्टेन सब टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन आते हैं, सो दैट विल बी कवरिंग इन द कोर्स। अभी मैं बस आपको मोटा मोटा ऊपर से आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल एन आइडिया अबाउट द सेम। करेक्ट। गुड इवनिंग उत्कर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। Yes, good to see a lot of my students back. Pharmacognosy. So Utkarsh has joined us, and he's now pursuing his pharmaceutical MBA from management from Naipur Mohali. He's also a very very bright student. So he's joined in the meet. Okay, so he was also very good in answering. Okay, so he's one of the inspiration. So maybe next year all of you will be also pursuing a master's somewhere in good institutes, right? IIT, Manipal, BITS. So I hope कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। So pharmacology से these are different questions that can be asked. जैसे pharmacology के 3 parts है, pharmacology 1, 2 and 3 in your semester 5, 4, 5 and 6. So हर कॉलेज में इंडिविजुअली कौन सा चीज क्या पढ़नी है, मेडिकेम, फिजिकल फार्मेसी। जैसे अगर मैंने बोल दिया गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर का क्या लेना देना है? गोल्ड नंबर का क्या लेना देना है प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलॉइड से, बता सकते हो? कैन यू टेल मी गोल्ड नंबर इज रिलेटेड टू हाउ इन द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलॉइड? गोल्ड नंबर सुना है हमने ये गोल्ड नंबर के बारे में? गोल्ड नंबर के बारे में सुना है हमने? यस। स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Yes, is my screen not visible? Visible, okay. Productive ability of a colloid, very good. It's a productive ability of a colloid, correct? जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ अ कॉलॉइड होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू मस्ट नो अबाउट दिस। सेम 5 में आप देख सकते हो ये सारी चीजें। ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्हाट आर द डिफरेंट एक्ट्स, मिसब्रांडेड, एडल्टेटेड, स्प्यूरियस के बीच का डिफरेंस पूछते हैं बहुत बार। सो ये सब चीजें ना आपको यू नो, बट आपको इन डेप्थ नहीं पता कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, हाउ यू हैव टू स्टडी। सो दैट इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कोर्स, सो दैट आपको एक रोड मैप मिले कि आप डेप्थ में पढ़ो कि हाँ ये चीजें पढ़नी है, इतनी पढ़नी है, इस हद तक पढ़नी है। नहीं तो पता चला यू गेट डीप इनटू अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड उससे क्वेश्चन ही नहीं आते या उससे कम आते हैं। So that is why we have designed this course. So looking forward to have a lot of your people out there. ठीक है, but उससे पहले I'm just going through all of this so that आपको idea आ जाए pharmacognosy, pharmacology, that what all things you have to study semester 6 में। How many of you are in semester 6 right now?
कितने लोग हैं वो हैंड रेज कर दो, क्या बोलते हैं इन गूगल मीट, एंड दोज हु आर इन चैट बॉक्स इन यूट्यूब कैन राइट इन चैट बॉक्स. ओके, सेमेस्टर 6 में वी हैव 2 people. Okay, 3. Okay, so then this is where you have to start from, right? Biotechnology, PCR से there is question denaturation annealing. तो बता सकते हो PCR में क्या है? टेम्परेचर, डीनेचुरेशन का टेम्परेचर, अनीलिंग का टेम्परेचर एंड पॉलीमराइजेशन का टेम्परेचर. सर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर्स के बारे में बता सकते हैं? नेप्रिलाइसिन इज नथिंग बट एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड और से रिलेटेड है, ये हार्ट के ड्रग्स है. नेप्रिलाइसिन जो है उसके एनागोनिस्ट वी हैव सैक्यूबिट्रिल. सो मोस्टली वी गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वल्साइटिन एंड सैक्यूबिट्रिल टुगेदर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा यूजफुल है आपके हाइपरटेंशन में. नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर प्लस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. ठीक है, ये जिसका भी क्वेश्चन था, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. Yes, Isha, I think so. Now it's clear. जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर उतनी कम प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलॉइड. Yes, I hope ये क्लियर है आपको. Yes, I think so. आपने गलत लिखा था. Yes, I hope ये याद रहेगा. बट हमें हमारी गलती सबसे ज़्यादा याद रहती है. We don't remember what we did right. We remember कि हमने गलत कहाँ बोला था, किसके सामने बोला था, वो चीज़ हमेशा याद रहती है. So that is why. Okay, I can see denaturation temperature 90 to 95. Very good. अनीलिंग टेम्परेचर 55 एंड पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर 72. यही पूछा था जी पैट में. क्या है ये? बच्चे जैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. पढ़ा ही नहीं है पीसीआर तो याद ही नहीं रहेगा, राइट? देन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, मेडिकेमेट्री, फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, इससे भी मैंने हाईलाइट करे हैं कुछ टॉपिक्स दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. क्यूए क्यूसी में व्हाट इज आईसीएच वगैरह. सेम 7 के अगेन आई हैव हाईलाइटेड फ्यू टॉपिक्स. सेम 8 में मार्केटिंग वगैरह, बायोस्टैट्स, है ना? तो these are all the things that I've highlighted for you all out here. So ये मेरी तरफ से कुछ की टेक अवेज है आप लोगों के लिए, that you must 3D को फॉलो करो. डिसिप्लिन, डिजायर, डेडिकेशन. किसी चीज को पाने के लिए डिसिप्लिन रखो, हैव द डिसिप्लिन. डेडिकेशन, हैव सम डेडिकेशन के वो चीज पानी है तो अब कोई भी आ जाए, कोई पुष्पा 2 आए या मुफासा आए, एनीथिंग, I'll be able to come over it. Desire, चाह है तो सब है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, right? That is a very famous dialogue. So you must know. Patience रखो. बहुत सारे when you give mock test you'll realize कि हाँ यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरे तो यही नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहे, कम मार्क्स आ रहे सबके मुकाबले. मेरे I used to get very low marks in my mock test. But उसी से सीखो. Check out where you are going wrong. Enjoy करो जितना हो सके, enjoy करो. Make notes. आज के टाइम पे भी बहुत, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना खुद का. Before coming here, you know, मेरा तो हो चुका है, right? Masters. Let me just stop sharing the screen. ये कैसे बंद करते हैं? Right. Even today मेरा मास्टर्स हो गया है, मैं फिर भी नोट्स बना के आया हूँ आप लोगों के लिए कि मैं अगर इन केस इफ आई फॉरगेट सम फ्यू पॉइंट्स तो मैं इसको देख के आपको बता सकूँ कि हाँ. सो नोट्स बनाना शर्माना नहीं, ठीक है? बना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. प्लीज शो सेमेस्टर वाइज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वंस अगेन. या आई विल जस्ट स्विच ओवर दैट, डोंट वरी, बिफोर आई एंड, डोंट वरी. So this is very important. And yes, ये जो है this I've obtained this image from somewhere. तो ये ना 1 page ये है कि माइक्रो बायोकेम बायोटेक से क्या क्या चीजें you have to study and what all are very frequently asked. So this is from HR Patel Institute. You can just go through all of this. And of course I have a small YouTube channel as well. You can subscribe to it. मेरे नाम से ये पयाम बोरा, PAYAAMVOHRA. I have an Instagram page as well. And since you are associated with Anandeep Foundation, of course, we'll be launching the course soon. So you'll be in touch with me. And you can get back to me on my number and the Telegram page, or you can contact me via my mail. अगर आपको कोई PPT चाहिए, मेरे स्लाइड शेयर पे कुछ PPTs भी फ्री में अवेलेबल है. You can access those PPT. मेरा नाम टाइप करना है, PAYAAMVOHRA.
and yeah, so अभी के लिए मैं इतना आप लोगों को बताता हूँ. And do you all have any doubts? Then we can take up those doubts first, so that आपको, yeah, Bandhu sir, yes. Yeah, sir, my voice is audible? Yes, sir, your voice is audible, sir. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. So hope your guidance will help student to crack the GPAT, get NAPER exam with a very good rank. Yeah. So guys, I introduce myself. Myself, Dr. Bandhu Chatale. I I completed my master from Naipur Mohali in 2014. Then I completed my PhD from ICT Mumbai in 2020, and I am going to guide you for pharmaceutical chemistry course for this booster course. Also, we are going to give some guest lecture on weekend with Payam and myself, Dr. Bandhu Chatale. There are some guest faculty also here for guiding you. Dr. Maulik Kuwaja, he's from Naipur, PhD from Naipur Mohali. Dr. Tejas Damalia, he's also from PhD from Naipur Mohali. So such a guest speaker also there for booster course. So guys, how many people are interested for this booster course? Can you write in chat box? Can you write? Because today we have limited offer, then that will be same amount. But today you have 1,000 only. How many people are interested? Can you write in chat box? You just write interested, or just write in chat box. How many people are interested? Yeah. So if you are interested, then just fill that form, and you have to just pay 1,000 today. You can pay till 8 o'clock, and then all offer given to you will be you people. So and we are with you till you are getting crack, GPAT, GATE, NIPER as well. We are guide you for admission process for getting. Another very important thing we require to explain here is we are helping for pharmacy. We have this separate group, pharmacy successor. So we are helping for URI in all direction. Like we are also helping you people for getting